Now, hello students. Today we are going to discuss chapter number 1 in geography, and the name of the chapter is Resources and Development. Resources and Development. The topic is very much familiar to us. Resources. If you noticed, in class 7 also we have read about resources. In class 8 also, in class 9 also, in class 10 also. And one more thing you might be noticed. We have also learned about the resources in science, in social science also, in geography also. Means resources are something very, very important. And we all are very much familiar about the resources. Just take one instance. Since morning to late evening till we are going to bed, whatever things we are using, whatever things we are just take to do something, have you ever thought what are these things? These all are resources. Means, what is resources? In Hindi it is called sansadhan. What it means? It means anything that satisfied human needs and wants are called resources. This is the simple definition of resources. Means इस संसार में मौजूद प्रत्येक वो चीज जो किसी न किसी रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, हमारी जरूरतों की पूर्ति कर सकती है, वो संसाधन है, वो रिसोर्सेस। ये के कुछ यहाँ पे बारीकियां हैं जिसपे हमें ध्यान देना है। We are studying in class 10, so over here we have to be very much clear and specific regarding the terms and their definitions. So, resources. Take one example. In the morning itself, when you are just opening your eyes and going to washroom and clean your teeth, you need a brush. You need toothpaste. Why we need brush and toothpaste? To clean our teeth. Why? For the sake of oral hygiene. So toothbrush and paste is very much helpful in cleaning our teeth. It is a need to make our mouth clean for the sake of oral hygiene. Means toothbrush and toothpaste is our resource. Without toothbrush and toothpaste, we are unable to clean our teeth. Similarly, for girls also, after putting comb on their hair, they need clip. Simple clip. So clip, with the help of clip, they can make different kinds of hairstyle. So a clip is also very much handy for them because it is also satisfied the need. Take one example of needle. Simple, सुई, बटन टूट गई, सुई से हम लोगों ने उसे स्टिच कर दिया। मामूली सी सुई कितनी उपयोगी है। बच्चों, अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ा के देखें तो आपको प्रत्येक वस्तु में कुछ न कुछ उसकी उपयोगिता नजर आएगी। यही उपयोगिता उस वस्तु को संसाधन में तब्दील करती है। कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाएगी, हम उसे रिसोर्स नहीं कहते हैं, और संभवतः ऐसी कोई चीज आपको नजर भी नहीं आएगी। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इन सारी चीजों को रिसोर्स के रूप में परिवर्तित करने में कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी बात की टूथपेस्ट और टूथब्रश की। क्या टूथपेस्ट और टूथब्रश आसमान में लटके हुए हैं, गए और तोड़ के लिए? नहीं। It has to be manufactured. There are number of raw materials. Those raw materials have been processed in industry, and then after toothpaste and toothbrush has been produced. Similarly, सुई की बात मैंने की, वो सुई भी क्या आसमान में लटके हुए हैं, जाकर तोड़ के लिए? नहीं।
क्या वो पेड़ पे होते हैं? नहीं, वो फैक्ट्रियों में बनते हैं। आयरन ओर से आयरन निकाला जाता है, आयरन की रिफाइनिंग होती है, फिर उसकी अलग अलग शेप और साइज में हम पिघला करके उसकी उपयोगिता के अनुसार उसे बनाते हैं और यूज करते हैं। तो लोहे की सुई भी बनती है, लोहे के जहाज भी बनते हैं, कैंची भी बनती है, हथियार भी बनते हैं, बंदूकें भी बनती हैं। तो डिपेंड्स अपॉन आवर नीड्स। तो आप यहाँ गौर कीजिए, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ? मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन जो चीजों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल, ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं, और नेचुरल थिंग्स को हम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब कि हम उसमें अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, उसके रूप को, उसके स्वरूप को बदलते हैं, जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। मीन्स बाय अप्लाइंग आवर स्किल एंड टेक्नोलॉजी वी ट्रांसफॉर्म नेचुरल थिंग्स into resources. Means after using our technology and skill, we are adding values to those natural things so that it could become useful to us. तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब नेचुरल गुड्स के साथ इंटरेक्शन किसका है? ह्यूमन बींग्स का। ह्यूमन बींग्स का किस रूप में? ह्यूमन बींग्स का अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के साथ उसके साथ इंटरेक्शन होती है, और वो क्या तब बनाती है? उसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर देती है, ट्रांसफॉर्मिंग। नेचुरल गुड्स विल बी ट्रांसफॉर्म बाय ह्यूमन बींग्स बाय अप्लाइंग इट्स स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें ध्यान देने की बात है, अब जो गुड्स हम बना रहे हैं वो सर्वसुलभ होना चाहिए। सर्वसुलभ का मतलब वो तभी संभव है जब वो हमारी रीच में हो, मीन्स इकोनॉमिकली वो फिजिबल हो, मतलब सस्ता हो, वो हमारी पहुंच के अंदर हो। पहुंच का मतलब लंबाई में नहीं, मतलब कि हमारी आर्थिक शक्ति इतनी हो कि हम उसका उपयोग कर सके। ऐसी नहीं कोई वस्तु बन जाए जिसका इस्तेमाल इंसान कर ही नहीं सके, क्योंकि वो उसके बियॉन्ड द रीच हो, इकोनॉमिकली वो काफी महंगा हो, हम नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी होनी चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि ये रिसोर्सेज हमारे समाज में इस्तेमाल होते हैं, हम सभी समाज में रहते हैं, तो जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए, कल्चरली भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। कल्चरली का मतलब है कि हम उसका इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि वो बने और लेकिन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी उसको इस्तेमाल करने से परहेज करे तो हम नहीं बना सकते, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप गौर करते होंगे, कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल हमारे परिवारों में निषिद्ध होता है, उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। तो अर्थात रिसोर्सेस के लिए कुछ बातों को हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि नेचुरल गुड्स होना चाहिए, यानी नेचुरल थिंग्स है, उसमें ह्यूमन बींग्स की अपनी स्किल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होना चाहिए, और जो सामान प्रोड्यूस होगा वो मस्ट बी इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए और एक्सेप्टेड कल्चरली होना चाहिए। तभी वो गुड्स रिसोर्स के रूप में हम कह सकते हैं। मतलब यूटिलिटी हो, लेकिन यूटिलिटी को एड ऑन करने के क्रम में ध्यान रखना है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, और साथ साथ क्या होनी चाहिए, वो कल्चरली भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इन सारी बातों के सेंटर में कौन है? समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। मैंने कहा कि आयरन ओर्स माइनिंग से निकाली जाती है, निकालता कौन है? वो आयरन ओर को माइन से निकालने की टेक्नोलॉजी लानी होगी, वो टेक्नोलॉजी लाता कौन है? उस आयरन ओर को आयरन फैक्ट्रीज में, स्टील इंडस्ट्रीज में लेके जाता कौन है? फिर वहां उसकी प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, उससे इंप्योरिटीज निकाली जाती है जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। फिर उसके बाद उसको डिजायर्ड शेप और साइज में कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है? इंसान, ह्यूमन बीइंग। मतलब रिसोर्सेस को जब हम देखेंगे तो रिसोर्सेस की यूटिलिटी इंसान के लिए, और रिसोर्सेस बनाते भी इंसान के ही टेक्नोलॉजी और स्किल से, वो बनती भी वहीं से। मतलब इंसान ही नेचुरल गुड्स को, नेचुरल थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करता है बाय यूजिंग इट्स स्किल एंड टेक्नोलॉजी इनटू रिसोर्सेस,
मतलब कि इंसान खुद में ही एक रिसोर्स है। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा ह्यूमन रिसोर्स। ये टेक्नोलॉजी, ये विधा, ये साइंस, ये कौन लाता है, कौन डेवलप करता है? तो वो है मनुष्य। तो मानव स्वयं में एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। ये मानव ही अपने ज्ञान का, अपनी समझदारी का, अपने अनुभव का वो इस्तेमाल करके क्या बनाता है? तो वो रिसोर्सेस को बनाता है, यानी वैल्यू ऐड करता है। एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, आप गौर करेंगे। ये डेफिनेशन में मैंने लिख रखा है, ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट दैट सैटिस्फाई human needs, remember human needs and wants which are technologically, economically and culturally accessible and are acceptable can be termed as resources. कल्चरली उसमें डायमेंशन होना चाहिए, वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, और वो टेक्नोलॉजिकली हमारे पास वो टेक्नोलॉजी हो तभी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। याद कीजिए, यहां पर भी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। पेट्रोलियम हमारी धरा के अंदर सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से मौजूद रही है, लेकिन पेट्रोलियम का इस्तेमाल हमने कब करना सीखा? रिसेंटली, संभवतः 200 साल पहले से, 150-200 साल पहले से। पानी से बिजली पैदा, यानी कि हाइड्रोसिटी जनरेट करते हैं हम। वाटर तो धरती पर शुरू से थी, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि कैसे हम हाइड्रोसिटी जनरेट कर सके। अर्थात मतलब कि जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है, मानव के ज्ञान का विकास होता है, मानव अपने ज्ञान को अपने नेचुरल थिंग्स में, अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कराता है और उससे नई चीजों की वो पैदाइश कराता है, नई चीजों की पैदाइश होती है, नई चीजें वहां पर उत्पन्न होते हैं जो उसकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। इस चीज को थोड़ा क्लियर करते हुए मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया है डायग्राम के थ्रू। रिसोर्सेज इक्वल्स टू नेचुरल थिंग्स, और साथ में क्या आएगा? टेक्नोलॉजी और स्किल। कौन देगा? ह्यूमन बीइंग प्रोवाइड करेंगे। और जो गुड्स बनेगा इन दोनों के मेल से, नेचुरल थिंग्स और टेक्नोलॉजी और स्किल के मेल से, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ये निश्चित ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज अगर नहीं होगी तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगी। अब इसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। नेचुरल गुड्स की बात करते तो देख लेते हैं, वुड, वुड हम कहां से लेते हैं? जंगलों से, पेड़ों से मिलती है, ये नेचुरल गुड्स है। हमने क्या किया कि उस लकड़ी को एक कारपेंटर क्या करता है? उससे कुर्सी बनाता है। तो कारपेंटर उससे कुर्सी कैसे बनाता है? वो उस लकड़ी की छिलाई करता है, कटाई करता है, घिसाई करता है, और डिजायर शेप और साइज में कारपेंटर आपसे पूछता है आपको कैसी कुर्सी चाहिए? बाजू वाली चाहिए, बिना बाजू वाली चाहिए, डिजाइनर चाहिए, ऊंची कुर्सी चाहिए, छोटी कुर्सी चाहिए, स्टूल चाहिए, क्या चाहिए? मतलब आपके जरूरत के हिसाब से वो बंदा, ये कारपेंटर स्किल्ड है, उसे इस बात का अनुभव है कि कैसे बनाना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे मेजर करनी है। आपने गौर किया उसके पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी मतलब कैसे वो बनेगा, और साथ में वो अपने साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके चलता है, औजार, जो उसके लिए बहुत कीमती है। उसी की सहायता से वो उस लकड़ी को डिजायर शेप में जो आप चाहते हैं उसमें तब्दील करता है। जैसे कि मान लीजिए वो चेयर बनाता है, ये फाइनल आउटपुट उसका चेयर है। अब चेयर क्या हुआ? लकड़ी रॉ मटेरियल के रूप में हुई, चेयर फाइनल प्रोडक्ट है, और ये फाइनल प्रोडक्ट कैसे बना? टेक्नोलॉजी और स्किल से। दिया किसने? कारपेंटर ने। कारपेंटर मतलब ह्यूमन बीइंग। यूज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग ही यूज करेगा। कहने का मतलब कि रिसोर्सेस के सेंटर में वो है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग ही अपने स्किल का इस्तेमाल करके, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचुरल थिंग्स को ट्रांसफॉर्म करता है रिसोर्स में। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न ये पूछे जाते हैं, हाउ नेचुरल थिंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू रिसोर्स। तो आप बताएंगे, बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल थिंग्स कैन बी ट्रांसफॉर्म एज अ रिसोर्स। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बीइंग, नेचुरल इन्वायरमेंट इंटरैक्ट करती है और रिसोर्स को जन्म देती है। Students, we have just discussed regarding the meaning of resources. We have discussed how natural things can be transformed as a resource by the human beings.
by using his knowledge, his technology, skill, and adding values to them. So over here you have to remember, when any natural things has been added by value, जब किसी भी नेचुरल थिंग में वैल्यू ऐड करती है, वैल्यू का मतलब उसकी यूटिलिटी जब बढ़ जाती है, जैसे लकड़ी से कारपेंटर ने कुर्सी बनाई तो लकड़ी की तुलना में कुर्सी की कीमत अधिक हो जाएगी। वो जो वैल्यू ऐड होती है वो उस रिसोर्स की कीमत को बढ़ाती है। तो ये ध्यान रखने में मेटलिस्टिक वे में ये आप समझ सकते हैं कि किसी जिस गुड्स की यूटिलिटी जितनी अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो यहाँ पे आप प्रश्न पढ़ सकते हैं कि सर पानी के विषय में क्या ख्याल है? हमारे यहाँ तो पानी मुफ्त में ही मिलती है, तो हमारे यहाँ की कहावत है, मिले मुफ्त दिले बेरहम, हम पानी की खूब बर्बादी करते हैं। आइए उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या स्थिति है। अगर पानी की महत्व को समझना है तो एरिड रीजन में जाकर समझिए, जो पानी हम बर्बाद करते हैं वो पानी उनके लिए कितनी कीमती है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जो हम लोगों ने डिस्कस किया रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स का नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन का, उसी को इस एक डायग्राम के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है। आपकी पुस्तिका में भी, एनसीईआरटी की किताब में भी ये फर्स्ट पेज में ही, ये इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये डायग्राम है। आप गौर से देखेंगे, इसके एक वर्टेक्स पे एक ट्रायंगुलर फॉर्म में एक पिरामिड के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक वर्टेक्स पे नेचुरल इन्वायरमेंट है, दूसरे वर्टेक्स पे टेक्नोलॉजी है, तीसरे वर्टेक्स पे इंस्टीट्यूशंस है, और इसके सेंटर में ह्यूमन बींग्स है। मींस ह्यूमन बींग्स इज द सेंटर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग नेचुरल इन्वायरमेंट से गुड्स को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर यहां से आयरन ओर को लाया गया, इस आयरन ओर की रिफाइनिंग कहां होगी? तो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में होगी, इंडस्ट्री में होगी। तो ये क्या हो गया? इंस्टीट्यूशन होगी। इस इंस्टीट्यूशन में किसने बनाया? ह्यूमन बींग्स ने। ह्यूमन बींग्स ने टेक्नोलॉजी डेवलप की तो उससे ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। उसी से नेचुरल इन्वायरमेंट से हम आयरन ओर को यानी कि नेचुरल गुड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग द रिसोर्सेस and what is the role of human being in transforming any natural goods into a resource. So you have to remember this diagram. You may be asked in examination, this particular pyramid may be given and you may be asked to describe what do you understand by this particular pyramid. तो ये आपको याद रखना है। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए मैंने लिखा है कि नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटररिलेटेड। नेचर एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटररिलेटेड and human beings interact with nature to utilize its bounty in the form of resource. bounty का मतलब है कि इसकी जो भी उपयोगिता है, जो भी सामान यहाँ उपलब्ध है, रिसोर्सेज, जो नेचुरल थिंग्स यहाँ पे, कैसे उसका इस्तेमाल करें। bounty मतलब गिफ्ट होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं किसके रूप में? रिसोर्स के रूप में। तो मतलब कि ह्यूमन बीइंग नेचुरल इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करता है, इससे वो नेचुरल थिंग्स को ऑब्टेन करता है, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है और उसी के बदले इंस्टीट्यूशंस बनाता है और वहां पे जाके फाइनली वो रिसोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है और रिसोर्स एज अ फाइनल गुड्स हमारे पास मौजूद होती है। तो फिर फाइनली क्या लिखते हैं? Thus, resources are a function of human activities and human beings are also regarded as resources. Very very important, human being as a resource. अगर आप यहां से इस ह्यूमन बीइंग को आप हटाते क्या होगा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन इन तीनों को इंटररिलेट करेगा? नेचुरल गुड्स को कौन लेगा? यानी गुड्स को, लकड़ियों, जंगल की लकड़ियों, पेड़ों से लकड़ियां कौन लाएगा? उन लकड़ियों को टेबल के रूप में, कुर्सी के रूप में, अलमीरा के रूप में, दरवाजे के रूप में कौन कन्वर्ट करेगा? कहां होगी? और उस सामान को कन्वर्ट करने के लिए जो टूल्स चाहिए वो कहां बनेगी? कौन बनाएगा? तो स्पष्ट है कि सेंटर में ह्यूमन बींग्स हैं। अगर यहां ह्यूमन बींग्स नहीं हो तो सारी चीजें अधूरी पड़ी रह जाएंगी। तो human beings is very very important and human beings itself a resource because human beings की knowledge भी resource है,
उसकी अपनी नॉलेज, उसकी अपनी जो स्किल है वो भी रिसोर्स है. आई हैव रिटन ओवर हियर few things. This is the example. A number of things you can add in this particular list of resource, such as land, forest, coal, machines, air, water, soil, good health, human beings, their knowledge, freedom. These all are resources. Because ultimately somehow these all are contributing in transforming natural things as a resource. तो ये ध्यान रखना है, इसमें ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी लिस्ट है. आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी चीजें आ सकती हैं. यानी आप अपने चारों तरफ जो भी चीज आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो रिसोर्स है, कहीं ना कहीं रिसोर्स ही है वो. अब वो पेड़ पौधे को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, कोयले को ले लीजिए, आपके घर में जो एसी लगी हुई है वो ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, खाना ले लीजिए, वो सब रिसोर्स है. हम खाना क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं. तो ये सब रिसोर्सेज है. कोई भी चीज, एक मैंने एग्जांपल दिया, क्लिप की एग्जांपल मैंने दी, एक सुई की एग्जांपल दी. हर चीज एक रिसोर्स के रूप में ही हम इस्तेमाल करते हैं. एक रबर बैंड, आप अगर रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी एक रिसोर्स है, क्योंकि वो भी आपके लिए यूजफुल है, यूटिलिटी है उसकी. तो इस प्रकार से ये डायग्राम आपको याद रखना है. और याद रखिएगा कि सेंटर में ह्यूमन बींग्स है. सेंटर, ह्यूमन बींग इज द स्कोर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल एक्टिविटीज. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स. नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस. हैव यू एवर थॉट व्हाई देयर इज अ नीड to classify resources? As we know that resources are everywhere and it is a part of our day-to-day life. We cannot imagine our life without these resources. Everything that we are using is a resource. I am using this marker, it is also a resource. I am using this board, it is also a resource. So similarly, in geography there are a number of resources. So now there is a need to just classify these resources to understand these resources according to their nature. So just like you people are classifying animals in biology, like you have reading about mollusca, amphibian, reptiles. So different species having some sorts of similar characteristics, and similar characteristics, the animals that having similar characteristics, you people are putting those animals into one kingdom. Similarly, in classification of resources, we are going to just find out some sorts of common thing, and accordingly those resources are going to be classified. And classification of resources can be made on several ways. So there are a number of ways on which classification of resources can be done. I have just drawn a flow chart showing a simplest way of classification of resources. You can see resources simply classified into natural and human. Human resources, we have discussed earlier that human being itself are resources. Then after, natural resources can be classified into renewable and non-renewable. Renewable means resources that can be obtained again and again. Means resources that cannot be exhausted. यानी वैसे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होंगे, वो हमें लगातार मिलते रहेंगे, उनकी प्राप्ति हमें लगातार होती रहेगी. जैसे हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेस है. दूसरा, नॉन रिन्यूएबल, नाम से स्पष्ट है, जो रिन्यूएबल नहीं है. मतलब द रिसोर्सेस वंस एग्जॉस्टेड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन, कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन. तो ऐसे रिसोर्सेस को हम लोग नॉन रिन्यूएबल कहते हैं. जैसे फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल है. ये एक बार एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ये फिर हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे. तो दीज रिसोर्सेस आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. अब देखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस को फिर से हम दो भागों में बांटते हैं, कंटिन्यूअस और फ्लो. मींस ऐसे रिसोर्सेस जो लगातार बहती रहती है, चलती रहती है,
वो कहते हैं कंटिन्यूअस। जैसे विंड और वाटर, ये कंटिन्यूअस रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है। तो ये किसका भाग है? रिन्यूएबल का। विंड और वाटर अभी बात हुई कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज का दूसरा पार्ट बायोलॉजिकल, मींस it is related to the living beings, and living beings can be divided into two categories. It is natural vegetations and wildlife, means we are talking about plant kingdom and animal kingdom. They are the part of the biological resources, these are the part of the renewable, and these are the part of the natural resources. Again, the second arm, the second division of natural resources is non-renewable. नॉन रीन्यूएबल यानी जिसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे अभी डिस्कस किया हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स का, कोल, पेट्रोलियम, ये नॉन रीन्यूएबल है। वंस दे एग्जॉस्टेड इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। अब इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग दो भागों में फिर से बांट के देख सकते हैं। एक है रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल का मतलब पुनः चक्रण जिसका किया जा सकता है। रिसाइकल, फिर से हम उसको रिसाइकिल करके फिर से हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों में लोहा वगैरह जो भी कचरा निकलता है, खासतौर से दीपावली के समय में, उसको आप क्या करते हैं? बेच देते हैं। आपने कभी गौर किया है कि वो जो आपने वेस्ट जो आपके लिए था, उसको जो आपने बेचा, वो कहां जाएगा? कोई बंदा उसको खरीद के ले गया तो वो अपने घर में नहीं रखेगा, वो ले जा करके उसे फैक्ट्रियों में बेचते हैं जहां पे उसको फिर से इस्तेमाल करने के योग्य बनाया जाता है। तो ये वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं। मेटल्स आर नॉन रिन्यूएबल, वंस दे एग्जॉस्टेड इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। लेकिन इसको रिसाइकल करके हम इसको बार बार यूज कर पाते हैं। अब गौर करेंगे, इसको ध्यान देंगे कि ये मेटल्स हैं रिसाइकलेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बर्बाद करेंगे, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल का पार्ट है। दूसरा नॉन रिसाइकलेबल यानी कि जिसको हम पुनः यूज नहीं कर सकते, वंस इट यूज इट्स ओवर। जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे आप अपने घरों में जो एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, आपने देखा होगा कि निश्चित समय के बाद गैस खत्म हो जाती है, हम लोग बोलते हैं गैस खत्म हो गई, तो फिर हम नए सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये संभव था कि रिसाइकलेबल हो जाती तो फिर से आ जाती, वो सिलेंडर में फिर से वो जाती है रिफाइनरी में, वहां पे फिर उसको फिलअप किया जाता है, फिर आपको मिलती है। तो इस प्रकार से ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। अब चलते हैं यहाँ पे रिसोर्सेज का दूसरा जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन में, वो है ह्यूमन, एक नेचुरल में और दूसरा ह्यूमन में। अब ह्यूमन रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट के देखते हैं। ह्यूमन, जैसे हम लोगों ने अपने विषय में बात की, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब इसको दो भागों में बांटते हैं, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। ये स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, वो स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के रूप में आते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें हम लोग, वो वास्तव में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के पार्ट है। अब यहाँ दूसरी बात है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब ये क्वांटिटी एंड क्वालिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का तात्पर्य होता है कि ह्यूमन बीइंग की संख्या, पॉपुलेशन रिलेटेड, ये उसकी बात, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात होती है। और दूसरी बात है क्वालिटी। क्वालिटी मींस वो पॉपुलेशन आपकी कितनी योग्य है, ट्रेंड है, स्किल्ड है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा एसेट एंड लायबिलिटी। जो अनट्रेंड, अनस्किल्ड पॉपुलेशन होती है, वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो यहां पे क्वालिटी का तात्पर्य लिटरेसी रेट से है, समझदारी से है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अब इसको ब्रॉडली फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे कि अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हाउ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड। जैसा मैंने कहा, रिसोर्सेज को कई प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में उसी चीजों को पढ़ेंगे।